محبت کرنے والا خدا ہے، سچا خدا ہے، پیار کرتا ہے، معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور اس نے معافی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر۔ جب ہم گنہگار تھے، مسیح عین اس وقت ہم گنہگاروں کی خاطر صلیب پر ہوا تاکہ ہم بچ جائیں۔ آمین آمین۔ تو شکر گزاری سے بھرے ہوئے میرے ساتھ مل کر خدا کے زندگی بخش کلام کو کھولیں گے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کے 18ویں آیت مقدسہ میرے ساتھ اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کوئی کہے گا آمین۔ دنیا کے نزدیک صلیب کا پیغام، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک صلیب کا پیغام بے وقوفی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یسوع نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہودیوں نے کہا وہ ہمارا نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے ہو، جس کو ذلیل کیا گیا ہو، جس کو رسوا کیا گیا ہو، جس کو تانے دیے گئے ہو، جس کو ننگا صلیب پر لٹکا دیا گیا ہو، جس کی قدر نہ کی گئی ہو۔ وہ کہتے تھے ہمارا مسیحا جب آئے گا جلال میں آئے گا اور قدیم الیام بادلوں پر آئے گا اور قومیں اس کے آگے تھر تھرائیں گی۔ اس لیے وہ یسوع مسیح کی صلیب کے حصے کو مس کر رہے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ صلیب کے اس حصے کو مس کرتے ہیں۔ یہودی بھی اس حصے کو مس کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ان کا مسیحا، ان کا خداوند جب آئے گا وہ جلال میں آئے گا اور مسیحا معجزے کرے گا اور مسیحا اپنا جلال دکھائے گا اور قوموں کو مارے گا، مخالفوں کو مارے گا اور وہ بڑا جلالی خداوند کے طور پر ہمارے سامنے ہوگا۔ لیکن یہ کیسا ہے جو چرنی میں پیدا ہوا ہے، جو ہم انسانوں کی طرح بڑا ہے، جس کو لوگ تانے دے رہے ہیں آج اور کہہ رہے ہیں صلیب دو، اس سے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، اس کی داڑھی نوچی جا رہی ہے، یہ تو بے عزتی ہماری، ہمارا مسیح ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے ایک حصے صلیب کو مس کیا۔ دنیا بھی آج کہتی ہے صلیب کو بیچ میں سے نکال دیں، ہم اور آپ ایک ہیں، لیکن کلام کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی یہودی کیوں نہیں سمجھ سکے؟ حالانکہ یسایہ 53 باب میں اس بات کا بڑا واضح بیان ہے۔ خادم کے گیت ہیں یسایہ کی کتاب میں، 4 گیت ہیں خادم کے، جن میں سے ایک گیت اس کے دکھوں کا ہے۔ یسایہ 53 باب میں 52 باب کہتا ہے اس کی صورت صلیب پر ہر ایک بنی نو انسان سے زیادہ بگڑ گئی۔ اگر آپ فلم دی پیشن آف کرائسٹ دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کس طرح سے یسوع مسیح نے دکھ سے صلیب کے، اور یہی چیز یہودیوں کے نزدیک جو ہے وہ بے وقوفی تھی۔ وہ سمجھتے تھے جو صلیب پر مرا ہے وہ لعنتی ہے، اور وہ کہتے ہیں لعنتی کس طرح، اگر کوئی لعنتی بن گیا ہمارا مسیحا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا برا، دنیا کا نجات دہندہ، صلیب کے راستے سے نجات مہیا کر رہا ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اس بات کو یہودیوں نے مس کیا اور اس لیے وہ صلیب پر ایمان نہیں لا سکے۔ یونانیوں نے مس کیا۔ یونانی حکمت میں، فلسفی میں، سائنس میں بڑے آگے تھے، لیکن انہوں نے مس کیا صلیب کو۔
اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ایک بڑا مسیح ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے جو صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ اس لیے پالوس رسول لکھتے ہیں، فلسفرز کے لیے لکھتے ہیں، یہودیوں کے لیے لکھتے ہیں، اور کرنتھیوں کے نام خط لکھتے وقت جب پالوس نے کرنتھس میں کلیسیا قائم کی تھی، اس کلیسیا میں مسیح زندگی ایمان کے بارے میں کچھ مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پالوس نے کرنتھس کے نام خط لکھا، اور اس زمانہ میں کرنتھس جو ہے وہ یونان کا ایک بڑا بین الاقوامی شہر اور روم کے صوبہ اخیا کا صدر مقام تھا۔ تو یونان کا بڑا شہر ہونے کے ناطے بین الاقوامی انٹرنیشنل سٹی تھا کرنتھس جو ہے۔ یونانی وہاں پر رہتے، یہودی وہاں آتے، صلیب کے پیغام کو رد کرتے، کلیسیا قائم ہوئی، مسائل اٹھے، لوگوں نے سوالات کیے، صلیب کیسے، صلیب کی قدرت کیسے ہے، صلیب کے ذریعے کیسے نجات ہے۔ تو پالوس رسول اس بات کو بتاتے ہیں، اور وہ خدا کی صلیب کی قدرت کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کرنتھس کی کلیسیا میں تفرقے پیدا ہو گئے، حرام کاری، خاندانی زندگی کے مسائل آ گئے، مسیحی اور بے دین لوگ جو ہیں وہ آپس میں شراکت کرنے لگے، اور مسیحی بے دینوں کے ساتھ ملنے لگے۔ مسیح کی قیامت اور ایمانداروں کی قیامت کے متعلق سوالات اٹھنے لگے۔ یہودیوں کے مسیحوں کے لیے چندے کی بابت باتیں ہوئی، اور کچھ شخصی معاملات پر بات ہوئی۔ پالوس کو اس خط میں ان ساری باتوں کو ایڈریس کرنا پڑا، بتانا پڑا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے وہ جو لکڑی پر صلیب پر دیا گیا ہماری خاطر لعنتی بنا، تاکہ ہم شریعت کی لعنت سے چھوٹ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہیلیلویا۔ اور پالوس اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ صلیب کے لیے بتانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے کہا، صلیب اقوام عالم میں مسیحیت کا ایک امتیازی نشان بن چکی۔ رومیوں کے نزدیک بھی صلیب اور یہودیوں کے نزدیک بھی صلیب مجرموں کو المناک، عبرتناک سزا دینے کے لیے استعمال کی جاتی۔ رومی اس سزا کو اس قدر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ رومی شہری جتنا بڑا بھی مجرم ہوتا اس کو صلیب پر نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے اس کی بے حرمتی ہوگی، اس کے پاس رومی شہریت کا کارڈ ہے۔ پالوس کے پاس بھی رومی شہریت کا کارڈ تھا، اس لیے پالوس کو صلیب نہیں چڑھایا گیا تھا۔ پطرس کے پاس چونکہ رومی شہریت کا کارڈ نہیں تھا، اس لیے پطرس کو صلیب چڑھایا گیا۔ یاد رکھیے گا، آج بھی اگر کسی کے پاس گرین کارڈ ہو دنیا میں، سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، تو اس کو دنیا کے مختلف ممالک میں بڑی عزت ملتی ہے۔ اور میں ملکوں میں چونکہ گیا ہوں، جاتا ہوں، جب ایک وقت ایسا بھی آیا گرین کارڈ والوں کو وہ سائڈ پر کر دیتے تھے، ہمارا پاسپورٹ گرین ہے۔ تو اس وقت بھی رومی جس کے پاس کارڈ ہوتا اس کو بڑی عزت دی جاتی، حتیٰ کہ رومی شہری کو اس کربناک سزا سے مستثنا قرار دیا جاتا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سن 70 قبل از مسیح میں سیسرو جو تھا اس نے اسے صفاکی کی سزا جو ہے کا نام دیا گیا، اس نے اسے صفاکی کی سزا کا نام دیا، صلیب کو، جس میں مصلوب ہونے والا شخص رنج اور الم اور تکالیف کے جھرمٹ میں سسک کر مرتا تھا۔ یہ سزا غلاموں کے لیے تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صلیب پر جب کسی کو قربان کیا جاتا، چڑھایا جاتا، تو وہ اپنے گھٹنوں کو بل اوپر ہو کر سانس لیتا، اس کے پھیپھڑے کام کرتے رہتے، اس لیے مجرموں کے گھٹنے توڑ دیے جاتے تاکہ اب یہ مر جائیں۔
इनका सांस फेफड़ों का निजाम तनफ्फुस खत्म हो जाए। यीशु मसीह के साथ जो डाकू मसलूक थे उनके भी घुटनों की हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उससे पहले ही अपनी जान बाप को सुपुर्द कर दी थी। और उन्होंने देखा यीशु मसीह के मुतल्लिक चूंकि पेशन गोई थी इस बर्रे की जो फसा का बर्रा कहलाता है, यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है उसके मुतल्लिक पेशन गोई थी, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी, इसलिए यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी ना गई। जब वो यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने देखा कि वो मर चुका, उसने जान दे दी है, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह ने बाप के सुपुर्द अपनी जान कर दी थी। तो उन्होंने क्या किया, उसकी पसली में भाला मारा, क्योंकि 7 जगहों से खून बहना लाजम था पूरी शरीयत के मुताबिक, मौफी के लिए, पूरी पाकीज़गी के लिए। यीशु का खून अभी तक 6 जगहों से बहा था, इसलिए भाला मारा गया 7वीं जगह से खून बहाने के लिए। जब पसली में भाला मारा गया, यीशु का खून बह निकला और कफारे का काम मुकम्मल हो गया। हालेलुया। सलीब के मुताबिक मैं बता रहा हूं, सलीब पर इंसान सिसक का मरता। यीशु मसीह भी 3 घंटे सलीब पर रहे, और गुड फ्राइडे को हम देखेंगे 3 घंटे सलीब पर यीशु मसीह सिसकते रहे। उन्होंने 7 कलमात कहे, मेरी और आपकी निजात के लिए, मेरी और आपकी गुनाहों से माफी के लिए, मुझे और आपको नेगेटिव कर्सेस, डिजीजेस, डीमन पावर से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह सलीब पर रहे। यीशु मसीह ने कफारे का काम मुकम्मल किया, सिसकते रहे सलीब पर 3 घंटे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सलीब पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके गमों को बर्दाश्त किया, मेरी और आपकी लानतों को उठाया, मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया। मैंने पिछली दफा कफारे के मुतालिक तफसील से बताया, मेरे और आपके गुनाहों का कफारा खुदा के बर्रे ने दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए सलीब का पैगाम ईमानदारों के लिए खुदा की कुदरत है। आमीन। क्योंकि और किसी तरह बचाए नहीं जा सकते थे, और किसी तरह हमारे गुनाह धुल नहीं सकते थे, और किसी तरह इंसान को माफी मिल नहीं सकती थी। खुदा किसी और चीज को कबूल नहीं करता था इंसान के गुनाह की माफी के लिए। बैलों और बछड़ों का खून गुनाहों को धोने के लिए काफी ना था, इसलिए उसने आप एक बदन तैयार किया। किसका बदन? अपने बेटे का बदन। आमीन। ताकि उसके पाक खून के वसीले से, उसके कफारे के वसीले से मेरी और आपकी निजात का काम हो। सनीका एक और जो स्कॉलर है उसने भी इसे ऐसे ही जज्बात में बयान किया कि मसलूब होने वाले शख्स की रूह जान कनी से की हालत में उसकी जान से जुदा होती थी, आसान मौत नहीं थी। तारीख के वर्क उल्टने से हमें पता चलता है कि इस सजा के पस मंजर से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सलीबी मौत यकीनन भयानक बदतरीन सजा थी। इसलिए यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में ये खुदा से बाप से दुआ की। मत्ती की इंजील 26 बाब उसके 39 में आते मुकद्दस में, ऐ बाप, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। मैं गुड फ्राइडे वाले दिन इस प्याले के मतलब कुछ बताऊंगा। ये तमाम जहान के गुनाहों की कड़वाहट का प्याला था। इसका मतलब उससे तमाम जहान के गुनाह अपने ऊपर लेने थे जो बेगुनाह था। कितना मुश्किल है किसी एक शख्स के गुनाह अपने ऊपर लेना, उसकी जगह सजा भुगतना, और हर एक दुनिया के पापी के गुनाह अपने ऊपर ले लेना। इसलिए पौलुस कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया।
रेक्सफोर्ड सैंडर्स एक और खुदा का खादम है, उसने अपने एक मजमून में लिखा कि यीशु मसीह जो है उसने बहुत से अजीब और गरीब काम किए बगैर किसी दबाव और तनाव के। उसे टेंशन नहीं थी और बुलंद आवाज से जो है वो काम किए। और एक ऐसी दुआ जो सारी दुनिया के गुनाहों के कफारे की माफी के लिए थी, उसने सलीब पर आंसुओं से भीगी हुई दुआ की और सलीब पर माफी का ऐलान कर दिया। कोई कहेगा आमीन। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की। सलीब के मुतल्लिक मजीद कुछ बताना चाहूंगा आज। सलीब मसीहत में शिकस्त का नाम नहीं है, बल्कि सलीब पर मोहब्बत की जीत हुई है। सलीब खुदा के प्यार का मरकज है, इंसानियत की निजात का जरिया है। हालेलुया, याद रखिएगा। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। सलीब खुदा के बेटे की पुरमुसर्रत रज़ाकाराना खिदमत का इजहार है, कफारे का इजहार है, जो उसने मर्जी से हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, दुनिया के हर एक पापी के लिए कफारा दिया। लिखा है, खुदा के कलाम को देखेंगे, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब 18वीं आयत मुकद्दसा। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारी खातिर मुआ। कौन मुआ? तो सलीब ही हमारे गुनाहों की गहराई को जाहिर करती है। सलीब सिर्फ और सिर्फ निजात का रास्ता है। इंसान अपने ज़हन, दिलो दिमाग, तखयलात, तस्वुरात को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरीके, अकायद, फार्मूले लगाता है, लेकिन इनमें से कोई भी रास्ता या तरीका निजात और अमन की तरफ नहीं जाता। सिर्फ सलीब ही हमें निजात की तरफ ले जाती है। सलीब जिंदगी को नई तहरीक देती है, अपनी जिंदगी का यकीन सलीब ही दिलाती है। सलीब ना सिर्फ निजात और माफी की उम्मीद है, बल्कि गुनहगारों के गुनाह माफ होने का यकीन। और सलीब के मुतल्लिक बताना चाहता हूं, गुनाहों पर फतह अबदियत की उम्मीद को मुस्तकम करती है और ऐलान करती है। सलीब पर खून बहता हुआ ऐलान करता है, अब तुम रास्तबाज हो। हालेलुया, हालेलुया। सलीब के वसीले से खुदा हम पर अपना मुकाशफा जाहिर करता है। खुदा अपना मुकाशफा जाहिर करता है और खुदा बताता है कि यीशु मसीह में होकर हमारे दुखों और गमों को यीशु मसीह ने उठा लिया है। यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब पढ़े। ये यशायाह नबी का सहीफा अगरचे यहूदियों के पास था, यही सहीफा पढ़ता हुआ बाद में हबशी खोजा भी जा रहा था, जिसको मुबशर डीकन फिलिपस मिला और उसने उसको समझाया। उसने कहा ये नबी किसके बारे में कहता है, तुम्हें मालूम है जो तुम पढ़ रहे हो? उसने कहा जब तक मुझे कोई समझाए ना, अमाल 8 बाब में। तो उसने कहा जब तक मुझे कोई समझाए ना, मैं कैसे समझ सकता हूं नबी अपने बारे में कहता है या किसी के बारे में? तो फिर फिलिपस ने उसे समझाया, यीशु मसीह है ये जिसके बारे में यशायाह नबी कहता है। यशायाह 53 बाब 4 आयत मुकद्दसा। सलीब पर क्या हुआ? तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। मैंने बताया सलीब मोहब्बत की इंतहा है। आमीन। शर्नी मोहब्बत की इब्तिदा है, लेकिन सलीब मोहब्बत की इंतहा है। कलाम में लिखा, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं कर सकता कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे। लेकिन हम जब गुनहगार थे, दोस्त भी नहीं थे, दुश्मन थे, उस वक्त उसने
अपनी जान ऐन उस वक्त जब हम मरने को थे, जब हम जहन्नम के वारिस थे, ऐन उस वक्त उसने अपनी जान हम गुनहगारों के वास्ते देकर हमें अपने खून से मूल खरीद लिया। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं सोचता हूं कभी कभी, मैंने पिछली दफा एक बात कही, हमारे यहाँ एक मेहमान आई बच्ची और उसने कहा चर्च में सलीब लगी है, सीढ़ियों पर सलीब लगी है, आपके कमरों में सलीब लगी हुई है। वो कहा मैं तो सोचती हूँ मैं जिथे खलोनी मेरे मुंह च गाना आंदा, फिर मैं सोचनी हूँ किंज गावां, इथे तो सलीब लगी दी है। मैं उस छोटी बच्ची की आज भी इस सोच की कदर करता हूँ। उसको किसी ने सिखाया, लेकिन कुछ लोग गल च सलीबा पा के मसीह को अलानिया जलील करते पे ने, गले में सलीबे डालकर सारा सारा दिन गाने सुनते रहते हैं, गले में सलीबे डालकर सारा सारा दिन बेहूदगियों में पड़े रहते हैं, गले में सलीबे डालकर सारा सारा दिन ऐसी महफिलें सजाए रखते हैं जो ज़ेबा नहीं है। वो सलीब के दुश्मन है, याद रखिएगा, वो सलीब के क्या हैं? दुश्मन है। अपने बुरे कामों से मसीह की सलीब के दुश्मन है। सलीब फैशन नहीं है, सलीब निजात का पैगाम है। हालेलुया, हालेलुया। सलीब के वसीले और यीशु मसीह के तफैल और फजल से खुदा के साथ हमारा एक नया रिश्ता उस्तवार हो जाता है। हमारे चेहरों पर यह बात रोशन हो जाती है कि यीशु ने सलीब पर हमारे गुनाहों की सजा उठाई है। यशायाह 53 बाब देखें जरा फिर इसको, 5वीं और 6वीं आयत मुकद्दसा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सबकी बदकिरदारी उस पर ला दी। किसके बारे में ये साया कह रहे हैं? यीशु से 750 साल पहले यशायाह नबी ने ये पेशन गोई की यीशु मसीह के मतलब। और पहला पतरस 2 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्त बाजी के इतबार से जिए और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। वो आप किसके गुनाहों को लेकर? गुनाह किधर है? सलीब पर। गुनाह किधर है? वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए किधर चढ़ गया? सलीब पर चढ़ गया। कुलसुम के नाम खत में लिखा है, ताकि हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ लिखी हुई थी, उसे सलीब पर कीलों से चढ़कर सामने से हमेशा के लिए हटा दे। ये काम करने यीशु सलीब पर चढ़ा। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। सलीब के वसीले से हम खुदा के मकबूल नजर बन जाते हैं। इसलिए पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरा खत लिखते हुए यूं लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 21वीं आयत मुकद्दसा। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 21वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर
خدا کی راست بازی ہو جائے. آمین. وہ گناہ سے واقف ہی نہیں تھا. ہیلیلویا. بے گناہ صاحب، گناہ سے مبرہ، خدا کا بے عیب برہ، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. اور نسمال نے گیت گایا، پاپی نہ تھا پاپ بنا. پاپ اٹھائے اس نے، پاپی نہیں تھا، میرے اور آپ کے پاپ اپنے اوپر اٹھا لے تاکہ ہم اس میں ہو کر، ہم کون اپنی طرف اشارہ کریں، ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. ہیلیلویا. اس کا مطلب ہے مسیح کے صلیب پر خون بہانے کے وسیلے سے ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. کوئی ٹکا پیسہ نہیں لگا تھوڑا. راست باز ٹھہرایا جانا عدالتی ٹرم ہے، جوڈیشری ٹرم ہے. اس کا مطلب ہے جج مجرم کے خلاف تمام گواہوں، ثبوتوں، بیانات کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، میں اس کو بری کرتا ہوں. یہ راست باز ہے. اب ہم کیسے بری ہو گئے بھائی؟ پولس کہتا ہے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ جس نے نجات پائی دنیا میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جس کو مکاشفات ملے، کہتا ہے سب سے بڑا گنہگار میں تھا جس کو مسیح نے نجات دے دی. تو کیسے پاپ ہمارے دھل گئے؟ کوئی پرچی، سفارش، کوئی اور فارمولہ نہیں لگا، بیلوں اور بکروں کا خون نہیں لگا. ہماری خلاصی، پطرس رسول کہتے ہیں، سونے چاندی سے نہیں ہوئی. ہماری خلاصی بیش قیمت پتھروں سے نہیں ہوئی، ہیرے جواہرات سے نہیں ہوئی. ہماری خلاصی خدا کے بے عیب برے یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہوئی ہے. ہیلیلویا. اس لیے مفت میں راست باز ٹھہرے، خدا کی راست بازی ہو جائے. صلیب کے وسیلے ہمیں گناہوں سے معافی ملتی ہے اور ہم خدا کے خاندان کے رکن بن جاتے ہیں. کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط پہلا باب 13 اور 14 آیت مقدسہ دیکھیں. اس میں لکھا ہے اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. آمین. اس نے تاریکی کے قبضے سے چھڑایا، صلیب پر کفارہ دے کر خدا باپ نے اپنے بیٹے کہ خون کے سبب سے میں چھڑایا اور اپنے بیٹے کو جو بادشاہی دی اس میں داخل کر دیا. جب ہم اس بادشاہی میں کفارے کے وسیلے داخل ہو گئے تو ہم کو مخلصی گناہوں کی معافی حاصل ہے. ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہو گئے. اس لیے لکھا ہے عبرانیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت مقدسہ میں، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. کوئی کہے گا آمین. آپ مسیح کے بھائی کیسے بن گئے بھائی؟ وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے. بہنیں بھی کیسے؟ اس نے آپ کو اپنے بھائی بنا لیا. کیسے؟ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. کیسے وہ کہتا اب تم نوکر نہیں میرے دوست ہو، اور دوست جانتا ہے دوست کے دل کی باتیں. If a friend is not a cheater, if a brother is not a cheater, اور یسوع مسیح وہ بھائی ہے جس نے چیٹ نہیں کیا بلکہ اپنا خون صلیب پر دیا ہے. ہیلیلویا. وہ دوست ہے جس نے چیٹ نہیں کیا، اپنا خون صلیب پر دیا تاکہ اپنی سچی محبت کو ثابت کر سکے. ایک ہی اصل سے پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب کس اصل سے ہو گئے؟ کس طرح؟ اس کے خون کے سبب سے. اسی باعث سبب سے وہ انہیں بھائی کہنے سے آمین.
आमेन। ये सलीब के वसीले, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की आवाज बड़ी कम है। कुदरत निकलनी चाहिए। हम निजात पाने वालों के नजदीक सलीब का पैगाम खुदा की, सलीब के वसीले से हमें हर एक बंधन से आजादी मिलती है। आप कहेंगे कैसे? कुछ बातें, चंद बातें जल्दी से बताऊंगा। शैतान से आजादी मिलती है, शैतानी कुव्वतों से आजादी मिलती है। कुल से दूसरा बाब 15वीं आयत मुकद्दस पढ़ ले। सलीब के सबब से उसने इब्लीस के इख्तियार को, हुक्म को, इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका भरमला तमाशा बना दिया। इब्लीस का सर सलीब पर कुचला। सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। ग्रंथ सिखों की मुकद्दस किताब में ये लिखा है, किसी ने इब्लीस का सर नहीं काटा, लेकिन एक है जिसका नाम यीशु है, सिर्फ उसने इब्लीस का सर काटा है। हालेलुया। ये ग्रंथ गवाही देती है, माजी के गुनाहों से आजादी देती है सलीब। और किताब मुकद्दस कुल से दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दस में लिखा, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। कितने कसूर माफ किए? कोई कहेगा आमीन। और हवाला में पढ़ रहा था पहले, कुल से दूसरा बाब 13वीं 14वीं आयत मुकद्दस। और गौर से सुनिएगा, ये बड़ी खास बात है। मैं पता नहीं किस तारीख को, 7 तारीख को मैं इस पर मुनादी कर रहा हूं शारुल कलूनी में इस हवाले पर। और हुक्मों की वो दस्तावेज जो मिटा डाली, जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ लिखी हुई थी, वो किताब जो हमारे गुनाहों से भरी हुई थी, नॉट ओनली वन पेज, पूरी दस्तावेज, बड़े डॉक्यूमेंट्स, एफिशिएंसियां नहीं लिखी हुई थी उस पर। क्या लिखे हुए थे? गुनाह। याद रखिएगा, यीशु सलीब पर हुआ, उसने माजी के गुनाहों से आजादी दी, उसने हाल के गुनाहों से आजादी दी जो इकरार करते हैं गुनाहों का, उसने मुस्तकबिल के गुनाहों से आजादी दी जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों का इकरार करते हैं, उनके गुनाह, उनके पाप धुल जाते हैं। वो हमारे नाम पर लिखी हुई थी और हमारे खिलाफ थी, लिखा हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ, और उसको सलीब पर कीलों से चढ़कर, सलीब पर कीलों से चढ़कर हटा दिया। उसका मतलब है अपने खून की कुदरत से सलीब पर जो बहाया गया, उससे उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए, इस तरह धोकर सफेद कर दिया उन सफों पर, अब उन पर हमारा कोई गुनाह नहीं लिखा होगा। हालेलुया। और हम मुफ्त में रास्तबाज खाएंगे। आमीन। माजी के गुनाहों से आजादी मिल गई। ये माजी के गुनाह थे जिनसे आजादी मिली, मौजूदा गुनाहों से आजादी मिली। कौन से गुनाहों से? रोमियो 6 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार न हो, क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हो। बीमारी से आजादी मिली। पतरस रसूल भी कहता है, ये साफ 53 बाब में भी लिखा और मत्ती 8 बाब 17 आयत में भी लिखा है, वो पूरा हुआ जो उसने कहा था ये साहब नबी ने, कि उसने आप हमारी कमजोरियां उठा ली और हमारी बीमारियां उठा ली। और पतरस रसूल कहता है, उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से हमने शिफा पाई है। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? कुदरत है। अब यहूदी, यूनानी, रोमी इस सजा को लानती मौत समझते थे। गलतियों 3 बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है,
मसीह जो हमारे लिए लानती बना, कौन बना? उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया है। ये है सलीब का पैगाम। आमीन। गुनाह की लानत की तफसील इस्तिस्ना 28 बाब में पढ़े, 15 आयत से आगे आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें आप पढ़ सकेंगे। खुदा का शुक्र है, उसने सारी कर्सित से हमें रहाई दे दी है, अदालत से आजादी मिल गई है। दुल्हन जो होती है उसको दूल्हा, जब दुल्हन तैयार हो जाती है, उसके लायक काबिल हो जाती है, तो दूल्हा जब दुल्हन को लेने आता है उसको अदालत में खड़ा नहीं करता। कहां नहीं खड़ा करता? मेरी बात आप समझ रहे हैं? A special place for bride, दुल्हन के लिए खास जगह। मुजरमों के लिए अदालत है। हम मुजरम थे, हमारे लिए अदालत थी, लेकिन जब मसीह की दुल्हन बन गए तो फिर हम अदालत से रहाई मिल गई हमें। हालेलुया। आइए हवाला पढ़ ले। लिखा, वरना बनाए आलम से, अबरानियों 9 बाब 26वीं और 27वीं 26वीं और 28वीं आयत पढ़ो। वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ। कौन? यीशु मसीह, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। गुनाह को क्या करे? अबदी खलासी कराई ना उसने। तो 28वीं आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है? निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। अब क्या करेगा? निजात के लिए किनको दिखाई देगा? जो उसकी दुल्हन है, उसकी राह देखती है, उसकी मुंतजिर है। पौलुस रसूल कहते हैं, हम बुतों से फिरकर जिंदा और हकीकी खुदा की प्रस्तुति करते हैं, और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के बादलों पर आने के मुंतजिर हैं। दुल्हन मुंतजिर है, दुल्हन इंतजार करती है, उसका दूल्हा कब आएगा। आमीन। इसीलिए दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, अबदी हलाकत से रहाई मिल जाती है। लिखा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आगे आपकी बारी है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की, आमीन, हमेशा की हलाकत से रहाई, हलाक ना हो। जहन्नम की आग का यहाँ तस्वर है यूनानी में। यहाँ हलाकत अबदी हलाकत की बात है। जहन्नम की आग में हलाक ना हो, आप जहन्नम की आग का ईंधन ना बने, इसलिए उसने सलीब पर आपका कफारा दिया। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सलीब पर इंसाफ और मोहब्बत एक दूसरे के साथ मुंतफिक हो जाते हैं, और इसलिए लिखा है, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, बस जब हम उसके खून के बाइस रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़्ब-ए इलाही से जरूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जो यीशु मसीह के अंदर है जरूरी बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदा यीशु मसीह के तफैल से, जिसके वसीले से आप हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र करते हैं। क्या करते हैं? खुदा पर हाथ उठाएं। क्या हम खुदा पर फख्र करते हैं? उसने अपने बेटे के वसीले से, सलीब की राह से हमारा अपने साथ मेल करवा दिया। हम यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, मुकम्मल ट्रस्ट। उसने सलीब का दुख सहा है। अपने खुदा यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार।
अब हम अपने नहीं हैं, कीमत से खरीदे गए हैं, ताकि अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करें। आमीन आमीन। आइए अपने जामे बर्रे के खून से धोने के लिए शुक्रगुजार करें। सलीब की कुदरत को समझें। सलीब के वसीले हम पर फजल हुआ है, इस फजल को नाचीज ना जाने। सलीब की कुदरत का बयान दूसरों के सामने करते रहिए और बताते रहिए। जब कोई सलीब के मुतल्लिक पूछे तो कहें सलीब खुदा की मोहब्बत की इंतहा है। खुदा आपको बरकत है। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। आइए अपनी जिंदगी यीशु मसीह को पेश करें। आप अगर अभी तक सलीब के पैगाम को कबूल नहीं किए हुए, अगर अभी तक आपने सलीब के पैगाम को कबूल करके तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी, आपने अगर अभी तक सलीब के पैगाम को कबूल करके अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हवाले नहीं की, अगर पौलुस की तरह आप ये नहीं कहते अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो आज कहना शुरू करें, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। आइए मेरे साथ कहें, मैं मसीह के साथ। अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा करके, बेटा आप भी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। सलीब के मंजर को देखें। पौलुस रसूल सलीब के मंजर को देखते हुए कहते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। जब मसीह सलीब पर, आप अपने आप को सलीब पर देखें आंखें बंद करके। जब उसके हाथ और पांव में कील लगे, कांटों का ताज पहना, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको कोड़े पड़े, सलीब पर कीलों से जड़ा जा रहा है, आप उसके अंदर हैं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब जो जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीले से गुजारता हूं। आमीन। खुदा आपको बरकत